What a joy it is to be with you all this morning, and I bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मसीह के नाम से आप सभी को प्रेम नमस्कार लेकर आता हूं। I was looking forward to being with you face to face, but that was not possible because of COVID-19. और मैं आप सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये संभव नहीं हो पाया है। But God willing, we will meet sometime in the future in Chhattisgarh. लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा और योजना हुई तो हम जरूर छत्तीसगढ़ में आप सभी से मुलाकात करेंगे। You know, the wonderful thing about God is the God of the Bible is a talkative God. और सबसे अद्भुत बात हमारे परमेश्वर के बारे में यह है कि हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। Whether lockdown or no lockdown, our God communicates. चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। And He wants to speak to you this morning. और आज की सुबह वो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करना चाहता है। You did not register to this conference by accident. God has a purpose and He is already speaking to you, and He still wants to speak to you more this morning. और अगर आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर किया है तो ये किसी दुर्घटनावश नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर अपनी योजना के तहत आज सुबह आपसे बातचीत करना चाहता है और वो आपसे बातचीत कर रहा है। One of the reasons I like my Bible is because the Bible talks about real people. और मैं अपनी बाइबल को पसंद करता हूँ क्योंकि जो बाइबल है वो रियल लोगों के बारे में बातचीत करता है। It talks about people just like you and me. ये ऐसे व्यक्तियों के बारे में बातचीत करता है जो मेरे और आपके समान हैं। People who had passion in life, people who had dreams in life, people who struggled in life, and people who had problems in life. ऐसे लोग जिनके पास एक दर्शन है, ऐसे लोग जिनके पास एक सपना है, ऐसे लोग जिनके पास समस्या है, और ऐसे लोगों के बारे में ये वचन हमसे बातचीत करता है। And today we're going to look at one question that an expert asked Jesus Christ our Lord. और आज एक ऐसे प्रश्न के बारे में हम देखेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति ने पूछा। So in Matthew chapter 22, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में verse 34 to 39, आयत 34 से लेकर आयत 39 तक, actually we can read all the way till 40th verse. और हम 40वें पद तक पढ़ सकते हैं। It says, hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसके समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। You know, all over the world today, because of COVID-19, life has completely changed. The world has completely changed in the last 2 to 3 months. और कोविड-19 के कारण आज हम देखते हैं कि विश्व में एक बड़ा बदलाव आया है। आज जीवन में एक बड़ा बदलाव को हम देख पाते हैं। It doesn't matter if people are rich or poor, educated or not educated. Everybody is asking the same question, what is the purpose of life? और आज चाहे वो कोई अमीर है, चाहे ये गरीब है, या कोई पढ़ा लिखा है, या कोई अनपढ़ है, आज प्रत्येक आज एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि आज जीवन का मकसद क्या है?
what is really the most essential thing in life? आज जीवन में सबसे मुख्य बात क्या है? And this was one of the best questions anybody could have asked Jesus. Which is the greatest commandment? और ये एक सबसे उत्तम प्रश्न था जो कोई भी प्रभु यीशु से पूछ सकता था कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? And Jesus, hearing this question, basically summarized this in his response by saying there are only two great commandments. The one is loving God, and the second one is like it, loving your neighbors as yourself. अब प्रभु यीशु मसीह ने जब इस प्रश्न को सुना तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर केवल दो मुख्य आज्ञाओं के रूप में दिया। उन्होंने कहा कि पहली जो बात जो मुख्य है वो है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और उसके साथ ही दूसरी मुख्य बात है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रख। And as you read the Bible, you begin to see, later on how Paul describes the greatest among faith, hope, and love is love itself. और जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस किस प्रकार से प्रेम को सबसे उत्तम स्थान देता है। वो कहता है कि पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। So I'm going to be breaking down this morning's sermon into 3 points. और आज की सुबह जो संदेश है उसको मैं 3 भाग में बांटूंगा। You just heard our brother sharing about how we need to make sure we keep the priorities right in a lockdown like this. और हमने अभी वचन में सुना जो हमारे भाई ने बताया कि हम इस लॉकडाउन के समय अपनी प्राथमिकताओं को कैसे प्रथम स्थान दे सकते हैं। The number one priority, my friends, is to love God with all your heart. और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से प्रेम रखें। Our heart is a very important aspect that God is pursuing after. और हमारा हृदय एक सबसे मुख्य भाग है जिसे परमेश्वर ढूंढता है। God has been pursuing us from the day we were born. और जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन से परमेश्वर हमें ढूंढता है। If you read the Bible, God has been doing that, and the Bible talks a lot about the heart of man. और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें ढूंढता है और वचन हमें बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे हृदय के प्रति उसको खोजता है। One of the verses in the Bible, it says that the heart of man is above all the most deceitful thing. और वचन कहता है कि जो हमारा हृदय है किस प्रकार से धोखे की बातों में लगा रहता है। And God wants to give us a new heart. और परमेश्वर हमें एक नया हृदय देना चाहता है। What does it mean to love God with all your heart? और इसका मतलब क्या है जो वचन कहता है कि हमें अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना है। So the challenge for you is in this lockdown season, in this limited season, God might be asking you to have an evaluation of your heart. Where is our heart? और इस लॉकडाउन के समय जो एक छोटा सा समय है, हमारे लिए चुनौती ये है कि परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि इस समय में हमारा हृदय कहाँ लगा हुआ है। What is your relationship with God like today? आज ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के साथ आपका कैसा संबंध है? How is it going on with your meetings with God every single morning? और हर सुबह परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात कैसी गुजर रही है? We live in a culture which wants to run 100 miles per hour every single day. और हम ऐसे संस्कृति में रहते हैं जहां लोग प्रतिदिन 100 किलोमीटर की रफ्तार से भागना चाहते हैं। We run fast. The 2 words that categorizes and describes our culture today is speed and change. Everything is changing very fast. और 2 बातें जो हमारी संस्कृति का उल्लेखन करती हैं, पहला है गति और दूसरा है change. और बदलाव। Everything is changing very fast. और सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। And if there's something that happened in the last 2.5 to 3 months during this lockdown season is everything has slowed down. और पिछले 2-3 महीने में एक जो बदलाव हमने देखा है वो है कि सब कुछ धीमा हो गया है।
It's almost as if time came and stood still. और एक ऐसा समय आया जहां सब कुछ स्थिर हो गया। You know, all the busyness of life has just calmed down for most human beings on planet Earth. और इस संसार में ज्यादातर मनुष्यों के लिए जो कार्य है वो थम सा गया है। And it is in this opportune time we need to reflect on our heart and say, God, I want to give my heart back to you. और ऐसी परिस्थिति में हमें एक बात करनी है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर, मैं अपना हृदय आपको सौंपना चाहता हूं या चाहती हूं। I was telling some friends the other day how in my own life, I was so busy, and yet in this lockdown, I'm having amazing times with God, reading His Word and spending time in His Word. और मैं अपने कुछ मित्रों को बता रहा था कि कैसे मैं अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया हूं, लेकिन उसके बावजूद इस लॉकडाउन के समय मैं बड़े आनंद को प्राप्त कर रहा हूं जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं और उसकी संगति को करता हूं। For the first time, India became silent. There was hardly any noise from the outside. और पहली बार जो भारत है इतना खामोश हो गया क्योंकि सब कुछ यहाँ बंद हो गया था। And the discipline of being silent before the face of God is a crucial one if you want to repair your heart. और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के चेहरे को निहारना सबसे महत्वपूर्ण बात है। Listening to God is the most essential thing when it comes to repairing our hearts. और परमेश्वर के आवाज को सुनना सबसे मुख्य बात होती है जब हम अपने हृदय को जांचते हैं और उसको सुधारना चाहते हैं। But listening to God is not possible if we are surrounded by a lot of noise and a lot of speed and a lot of chaos in our lives. लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनना कठिन हो जाता है जब हम हमारे चारों ओर बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा आवाज है, बहुत ज्यादा ध्वनि है। So in the quietness of this lockdown, prioritize to listen to God's voice. और इस लॉकडाउन के समय ये हम अपनी प्राथमिकता बनाएं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनें। Talking to God is good, but listening to God is even better. परमेश्वर से बात करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी उत्तम बात है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। And listening to God is better, but obeying God's word is the best response you and I can have. परमेश्वर की आवाज सुनना उत्तम है, लेकिन कहीं उत्तम है जब हम उसकी आवाज को सुनकर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। So my dear friends, take time out, read God's word, listen to Him and obey Him like never before in your life. मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर की आवाज को सुने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को पढ़ें जैसा पहले कभी आपने नहीं पढ़ा। Then Jesus said, love the Lord your God with all your soul. और फिर परमेश्वर मसीह ने कहा कि हमें अपने पूरी आत्मा के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है। Now, how do we know the quality of our soul? हम अपनी आत्मा की क्वालिटी को हम कैसे जान सकते हैं? Many times in our culture, when we talk about soul, we only think about soul will exist after we die. और जब हम आत्मा की बात करते हैं हमारी संस्कृति में, तो केवल एक ही बात आती है कि जो आत्मा है वो हमारे मृत्यु के बाद ही एग्जिस्टेंस में आती है। But do you know that you have a soul right now? I have a soul right now, and that can be felt and experimented with. और क्या आप जानते हैं कि आपके पास आत्मा अभी है और मेरे पास आत्मा है अभी, और जिसके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं? In my opinion, the more I read the scriptures, what I'm convinced is the quality of our soul is directly related to the quality of our relationships with people around us. और जैसे मैं वचन को पढ़ता हूं तो मैं ये इस बात को जानता हूं कि जो हमारे आत्मा की गुणवत्ता है वो हमारे लोगों के संग जो हमारा संबंध है उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। So this aspect, loving God with all your soul, is connected to the second greatest commandment of loving your neighbors as yourself. और ये जो दूसरा भाग की आज्ञा है जिसमें लिखा है कि हमें अपनी पूरी आत्मा के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है, उसका जो संबंध है वो उस आज्ञा से है जो परमेश्वर मसीह कहते हैं कि तुम्हें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है।
Loving God with all your soul is connected to your horizontal relationships with people around you. और जब हम वचन कहता है कि हमें अपने परमेश्वर से अपनी आत्मा से प्रेम करता है तो उसका संबंध हमारे इस संसार में हमारे जो लोग हैं उनके साथ होता है. For example, relationship with your parents, उदाहरण के लिए हमारा संबंध हमारे माता पिता के साथ, relationships with your brothers and sisters. हमारा संबंध हमारे भाई बहनों के साथ. If you're married, relationship with your spouse. अगर हम विवाहित हैं तो हमारा संबंध हमारी पत्नी के साथ. If you're a student, relationship with your teachers, principals, other students. अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा संबंध हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ, हमारे अध्यापकों के साथ, हमारे सहपाठियों के साथ. And if you're working, relationship with your boss and relationship with your colleagues. और अगर हम कार्यरत हैं तो हमारा संबंध हमारे बॉस के साथ, हमारे सहकर्मियों के साथ. If you're a business person, relationship with your employees, relationship with your vendors, relationship with your customers. अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा संबंध हमारे ग्राहकों के साथ, हमारे दुकानदारों के साथ. You see, relationships are extremely important for God of the Bible. देखिए, जो संबंध है वो परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. And one of the things I am again in my own life experiencing is deepening my relationship with my own children. और एक बात जो इस लॉकडाउन के समय मैं अनुभव कर रहा हूं वो है कि मैं अपना संबंध अपने बच्चों के साथ और गहरा और मजबूत बना रहा हूं. The other day I took my daughter out to get a PAN card, applying a PAN card for her. और मैं अभी कुछ दिन पहले अपनी बेटी को लेकर गया ताकि हम उसके लिए एक पैन कार्ड बना सकें. And so while coming back from the government office, I played a game with her. और जब हम गवर्नमेंट ऑफिस से लौट रहे थे तो मैंने एक गेम उसके साथ खेला. I said, Anika, why don't you toss the coin? और मैंने अनिका से कहा, अनिका तुम सिक्के को उछालो. She's 18 years old. और वो 18 साल की है. And she's applied to 2 or 3 different colleges right now. और वर्तमान में उसने 2 या 3 अलग-अलग महाविद्यालयों में उसने अप्लाई किया हुआ है. It's very important for dad and daughter to have good relationships. और ये बहुत जरूरी है कि पिता और पुत्री के बीच में एक अच्छा संबंध हो. So I told her, every time the coin comes head, I will take a right turn. और मैंने उससे कहा कि जब हेड आएगा मैं राइट टर्न लूंगा. And if it comes tails, I'll take a left turn for my car. और जब टेल आएगा तो मैं लेफ्ट टर्न लूंगा अपनी कार का. And it doesn't matter where we go, doesn't matter. We'll just play this game. और इससे कोई मतलब नहीं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं. ये एक खेल है और हम इसे खेलेंगे. So we began going right and left, right and right, left, right. You know, it was fun to be in this adventure. और फिर हमारी कार कभी दाहिने कभी बाएं, कभी दाहिने कभी बाएं, और हमें बड़ा मजा आने लगा इस खेल में और एक बड़ा ही एडवेंचर हमारे लिए हो गया. We were going in small lanes, big lanes. We were doing in, all kinds of places in the city of Bangalore. और बेंगलोर के शहर में हम कभी चौड़े रास्ते में, कहीं भी सकरे रास्ते में, और हर प्रकार की जगह में हम घूमने लगे. After 20 minutes, we stopped playing this game. और 20 मिनट के बाद हमने अपने खेल को विश्राम दिया. And I said, how did you like this game? And she said, it's fun. और मैंने अनिका से पूछा कि तुम्हें ये खेल कैसा लगा, और उसने कहा बड़ा मजेदार खेल है. What did you learn from this game? और मैंने उससे पूछा कि इस खेल के माध्यम से आपने क्या सीखा. She said, life is an adventure. उसने कहा कि जीवन एक एडवेंचर है. I said, sure, that's a good answer. और मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा उत्तर है. And as we were conversing, she said, life can take many turns and sometimes you don't know which turn it is taking. You're not in control. और फिर उसने कहा कि हमारा जो जीवन है वो अलग-अलग मोड़ ले सकता है, और कई बार हमें मालूम नहीं होता कि जीवन क्या मोड़ लेने वाला है. So I asked her, then when you were not in control of the rights and the lefts today, were you afraid? और मैंने उससे पूछा, जब आज आपके कंट्रोल में नहीं था कि हम दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे, तो क्या आपको डर लगा? She said, no. उसने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लगा.
And I asked her why. और मैंने उससे पूछा क्यों? She said, because you are with me. और उसने कहा क्योंकि आप मेरे साथ थे। I have a relationship with you. उसने कहा कि मेरा आपके साथ एक संबंध है। You see, those are the two levels of impact there. One learning that we had was when God is with us, we don't need to worry about the left and rights and the different surprise turns that life takes. और ये सीख हमने सीखी कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हम दाएं जाएं चाहे बाएं जाएं, ये जीवन में किसी भी प्रकार के मोड़ से होकर क्यों न गुजरे। And if we also surround ourselves and build healthy relationships with many people around our lives, we will never be poor in life. और जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ एक मजबूत और अच्छा संबंध बनाते हैं तो कभी भी हम अपने जीवन में अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। Being rich is not about having a lot of money. और अमीर होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत धन दौलत हो। Being rich essentially is about having many good friends and good relationships. और अमीर होने का मतलब मुख्यतः ये है कि आपके पास अच्छे संबंध हो, अच्छे मित्र हो। And if you cultivate a good soul with the help of God, you will not lack friends in your life. और जब हम परमेश्वर की सहायता से एक अच्छा आत्मा हम तैयार करते हैं तो हमें कभी भी अच्छे मित्रों की कमी नहीं होगी हमारे जीवन में। People will flock around you and people will want to be your friends. और लोग आपके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे और वो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। So my dear friends, in this lockdown season, take an extra effort to call people, to love people, to cultivate healthy relationships with people. मेरे प्रिय मित्रों, इस लॉकडाउन के समय में आइए हम कुछ थोड़ा अपने जीवन से ऐसा समय निकालें कि हम लोगों से मुलाकात करें, लोगों से अपने संबंध को मजबूत करें और एक अच्छा संबंध हम लोगों के साथ स्थापित करें। When you do that, you're truly loving God with all your soul. और जब हम ऐसा करेंगे तो हम सचमुच में अपनी सारी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम The करेंगे। final aspect of this beautiful commandment that Jesus gave is to love God with all your mind. और अंतिम बात जो इस आज्ञा में प्रभु यीशु मसीह ने कही वो यह है कि हमें अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना। You know, your mind and my mind is an incredible computer out there. और आपको मालूम है कि आपकी जो बुद्धि और दिमाग है और मेरा जो बुद्धि और दिमाग है एक बहुत ही विशिष्ट कंप्यूटर के समान है। And if you and I can sharpen our mind, we will be the most wanted people in our jobs, in our schools, and everywhere we go. और अगर हम अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को और ज्यादा अनुशासित करें तो हमें लोग ढूंढेंगे और हमारी जो जरूरत है वो लोगों को पड़ेगी। So my prayer for you is that you will take time to prioritize, to sharpen your mind. और मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे कि अपने बुद्धि को, अपने समझ को और आप और ज्यादा अनुशासित कर सकें। One of the temptations of a lockdown season is that you will be overcome sometimes with boredom. और एक जो समस्या हम देखते हैं इस लॉकडाउन के समय है वो है कि कई बार हमें बोरियत लगने लगती है। You know, but you can overcome that. लेकिन अगर आप चाहें तो इस बोरियत से ऊपर उठ सकते हैं। You can make sure that you're occupied by improving your skills. हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने योग्यताओं को और अच्छा करें और इस प्रकार से हम व्यस्त रख सकते हैं अपने जीवन को। I had to develop new skills to work from home in the last 60 days or so. और ये पिछले 60 दिनों में मुझे अपनी योग्यता को एक नया रूप देना पड़ा ताकि मैं अपने घर से काम कर सकूं। And if you're a student, you got to learn how to improve your mind from an online world in the next season of life. और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप आने वाले कुछ समय में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन पढ़ाई को कर सकें। God is willing to help you sharpen your minds. परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम अपने बुद्धि को अनुशासित कर सकें। God is willing to help you to create new habits, life-affirming habits.
परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम नए आदतों को अपने जीवन में लागू कर सके, ऐसी आदतें जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। God is committed to giving you new skills and sharpen your old skills even better. परमेश्वर आपको नए अनुभव, नई योग्यता देना चाहता है और आपकी पुरानी योग्यताओं को परमेश्वर और ज्यादा अनुशासित करेगा। But you got to have the desire from within yourself to say, God, I want to love you with all my mind. लेकिन इसके लिए आपके अंदर से परमेश्वर की चाहत निकलनी है और परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर, मैं अपनी सारी बुद्धि से, पूरे ज्ञान से आपसे प्रेम करता हूँ। So if you want to be a cutting edge, amazing young person out there, love God with all your heart, love God with all your soul, love God with all your mind. और अगर हम परमेश्वर के लिए एक चाहने योग्य जवान बनना चाहते हैं तो हमें पहली बात परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे ज्ञान से प्रेम करना है। I want you to think about the life of Joseph. मैं चाहता हूं कि आप यूसुफ के जीवन के बारे में सोचें। You know, read the life of Joseph from the book of Genesis. और जब हम उत्पत्ति की किताब से यूसुफ के जीवनी को पढ़ते हैं, And when you read it, you will see how this young man loved God with all of his heart. और हम जब इसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो जवान था वो किस प्रकार से अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता था। I mean, he never compromised. उसने कभी भी अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। But he also loved God with all of his soul, that he served his Potiphar, his master faithfully. और उसने परमेश्वर से अपनी पूरी आत्मा से भी प्रेम किया, इसलिए उसने बड़ी ईमानदारी के साथ अब पोतीफर के घर में रहकर उसकी सेवा की। When he was thrown in the prison, he served his prison mates faithfully. जब उसको जेल में डाल दिया तो उसने जेल में भी अपने जो साथ रहने वाले कैदी थे उनकी सेवा बड़ी ईमानदारी के साथ की। When he was promoted to become the second biggest person in the entire country of Egypt, he was faithful to his relationship with the Pharaoh. और जब उसे वो स्थान मिला जो पूरे देश में सबसे दूसरा ऊंचा स्थान था, उसने बड़े ईमानदारी के साथ उसने वहां पे फिरौन की सेवा को किया। And when he finally met his own brothers who were trying to kill him and sell him eventually, he did not take revenge, but he forgave them because he loved the Lord with all of his soul. और जब वो अपने भाइयों से मिला, वो भाई जो उसे मार डालना चाहते थे, जिन्होंने उसे बेच दिया, उसने उनसे बदला नहीं लिया, लेकिन उसने उनसे प्रेम किया और उसने अपने परमेश्वर के उस प्रेम से जो कहता है कि अपने पूरी आत्मा के साथ परमेश्वर से प्रेम करो। And you will also read about Joseph, how Pharaoh himself said, "The Spirit of God dwells in you." और हम जब पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में, हम देखेंगे किस प्रकार से पोतीफर कहता है कि परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। You were able to interpret my dream. तुम मेरे सपने का, मेरे दर्शन का भेद बता सकते हो। You have more knowledge. Your mind is sharper than all the best that is serving me in my court. तुम्हारे पास कितना बुद्धि और ज्ञान है और तुमने अपने बुद्धि को कितना अनुशासित किया है। And it was a mind that Joseph had given to him by God himself, because he loved the Lord with all of his mind, to be able to save 20% every year in the 7 years of fullness that they had. और जो ज्ञान यूसुफ के पास था वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था ताकि वो 20% का अनाज को सुरक्षित रख सके और उन 7 वर्षों में जो अकाल का था उसे उपयोग कर सके। So that when the 7 years of famine came, he was able to not only feed Egypt, but feed people from all around Egypt, including his own family that came after many, many years. और जब वो 7 साल का काल पड़ा तो यूसुफ ने केवल अपने देश के लोगों को नहीं, लेकिन आसपास के सारे देश के लोगों को और अपने परिवार को जो अकाल के कारण वहां आए उनको भी भोजन प्रदान कर सका। God is looking for 21st century Josephs. आज परमेश्वर 21वीं सदी के यूसुफ को ढूंढ रहा है। Joseph was in a lockdown of his own kind. पर यूसुफ अपने ही प्रकार के एक लॉकडाउन की परिस्थिति में था। For many, many years he was isolated from his own family. बहुत सालों तक अपने परिवार से वो दूर रहा।
But because he loved the Lord with all of his heart, soul, and mind, God lifted him up to a very high place. लेकिन उसने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपने सारी बुद्धि से प्रेम किया और परमेश्वर ने उसे ऊंचे में उठाया। And today he's looking to you and saying, will you be my 21st century Joseph? और आज परमेश्वर जब आपको देखता है वो आपसे पूछता है, क्या तुम 21वीं सदी के यूसुफ मेरे लिए बनना चाहते हो? So no matter what you do, my friends, in your life, keep these 3 secrets of life, 3 priorities of life: loving God with all your heart, loving God with all your soul, and loving God with all your mind, and God will surely bless you. मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये 3 अपने जीवन में इन बातों को प्राथमिकता दें। पहली बात कि अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से प्रेम रखें। दूसरी बात, अपने परमेश्वर से अपनी सारी आत्मा से प्रेम रखें। और तीसरी बात, परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखें। और हम जब ये 3 बातों को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे तो वास्तव में परमेश्वर हमें एक उत्तम स्थान में, एक उच्च स्थान में प्रवेश कराएगा। Let's close our eyes and ask God to help us to be the 21st century Josephs. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें 21वीं सदी के यूसुफ के रूप में बना। Father, we come before you this morning. परमेश्वर, आज की सुबह हम आपके चरणों के निकट आते हैं। Help us to love you with all of our hearts. हमारी सहायता करें कि हम अपने हृदय से आपको प्रेम कर सकें। Clean and give us a brand new heart, Lord. प्रभु, हमें हमारे हृदय को धोकर एक नया हृदय हमें प्रदान करें। Help us to love you with all of our soul, Lord. प्रभु, हमारी सहायता करके हम अपनी पूरी आत्मा से आपको प्रेम कर सकें। Help us to get right with people. हमारी सहायता करें कि हम अपने लोगों के साथ एक सीधा सही संबंध स्थापित कर सकें। Help us to release forgiveness towards people who hurt us. प्रभु, ऐसे लोग जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, हमारी सहायता करें कि उन लोगों को हम क्षमा का दान दे सकें। Help us to go and say sorry to the people we have hurt, Lord. प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्हें हमने चोट पहुंचाई है और हम उनसे माफी मांग सकें। But make our soul pure, O Lord. प्रभु, लेकिन हमारी आत्मा को पवित्र बना दीजिए। And help us to love you with all of our mind. और हमारी सहायता करें कि हम सारी बुद्धि के साथ आपसे प्रेम कर सकें। We want to be the 21st century Josephs. प्रभु, हम इस 21वीं सदी के यूसुफ बनना चाहते हैं। In the midst of this lockdown, help us not to forget these 3 important secrets, Lord. प्रभु, इस लॉकडाउन के समय हमारी सहायता करें कि हम ये 3 मुख्य सीक्रेट को अपने जीवन में कभी ना भूलें। In Jesus' name we pray. ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you and thank you very much. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद आप सभी का।